اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا يموت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا يموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ مسئلۃ فی ناصب اذا شرطیت مذہبان۔ بحث ہماری آج اس میں ہو رہی ہے کہ یہ جو اذا شرطیہ ہے اس کا ناصب کون ہے، یعنی اس کو نصب دینے والا کون ہے۔ فی ناصب اذا شرطیہ، اذا شرطیہ کے نصب دینے والے کے بارے میں بحث ہے۔ محل گفتگو، موضوع گفتگو کس میں ہے؟ موضوع ضرور پہلے کر لیا ہو تاکہ بات آگے ہماری چل سکے۔ اذا شرطیہ کے ناصب کے بارے میں ہے کہ اذا شرطیہ کا ناصب نصب دینے والا اذا شرطیہ کو کون ہے۔ تو اس میں دو نظریے ہیں، پہلے مثال کو بھی مد نظر رکھو۔ اذا جئتنی اکرمتک، اذا جئتنی، جب تم میرے پاس آؤ گے، اکرمتک تو میں آپ کا احترام کروں گا۔ اب بحث اس میں ہو رہی ہے عزیزوں کہ یہ جو اذا ہے، اذا شرطی، اس کا عامل کون ہے، اس کو ناصب دینے والا کون ہے، اذا شرطیہ کا ناصب کون ہے۔ تو اس میں دو نظریے ہیں، ایک نظریہ قول محققین کا ہے۔ محققین کہتے ہیں شرط ہے، اذا کا عامل جئتنی ہے، اذا کا عامل جئتنی جو شرط ہے یہ ہے، یہ بے منزلہ متا حیثما ایانہ ہے۔ متا حیثما کا جو عامل ہے وہ کون ہوتا ہے؟ شرط ہوتا ہے۔ تو یہ اذا بھی متا کی منزل پہ ہے اور اذا کا عامل جئتنی ہے، اذا کا عامل جئتنی ہے جو شرط ہے۔ یہ محققین یہ فرماتے ہیں، محققین کہتے ہیں کہ اذا شرطیہ کا عامل و ناصب شرط ہے، شرط۔ ایک آغا ہے جن کا نام ہے ابی بکا، وہ کہتے ہیں کہ محققین کی یہ بات غلط ہے، درست نہیں ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں اذا جو ہے یہ مضاف ہو رہا ہے جئتنی کی طرف، اور مضاف الیہ مضاف میں عمل نہیں کرتا ہے۔ ابی البکا کا قول ہے کہ محققین جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اذا کا عامل و ناصب شرط ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ابی البکا کہہ رہے ہیں کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ کہا اذا مضاف ہو رہا ہے جئتنی کی طرف اور مضاف الیہ مضاف میں عمل نہیں کرتا ہے۔ یہ انہوں نے اشکال کیا ابی البکا نے، تو اس کو رد کر دیتے ہیں آگے جا کر کہ ابی البکا کا یہ اشکال وارد نہیں ہے۔ کیوں کہ محققین جو کہتے ہیں اذا کا عامل شرط ہے، محققین کی نظر میں اذا مضاف نہیں ہو رہا، بات ختم۔ محققین کی نظر میں اذا جئتنی کی طرف مضاف نہیں ہو رہا تاکہ آپ اشکال کریں کہ جئتنی مضاف الیہ ہے اور پھر وہ اذا مضاف میں عمل نہیں کر سکتا۔ محققین کی نظر میں اذا مضاف نہیں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ جناب اس کو جواب مل گیا۔ اچھا، دوسرا نظریہ اذا کے ناصب کے بارے میں، دوسرا نظریہ اکثرین کا ہے۔ وہ کہتے ہیں اذا کا ناصب، اذا کا عامل اور نصب دینے والا کیا ہے؟ جواب ہے، جواب شرط ہے، شرط نہیں ہے۔ اذا کا ناصب جواب شرط ہے، ٹھیک ہے۔ فعل یہ شبہ فعل جو بھی ہے، اذا کا ناصب جواب شرط ہے۔ کلیئر ہو گئی بات آگا جان؟ اچھا، یہاں اذا جئتنی اکرمتک، اذا جو شرطیہ ہے اس کے ناصب کے بارے میں کتنے نظریے ہو گئے؟ دو، ایک محققین کا، دوسرا اکثرین کا۔ محققین کہتے ہیں اذا کا ناصب اور عامل شرط ہے، یعنی یہ تنی ہے۔ اچھا، اکثر کیا کہتے ہیں؟
अक्सरीन का जो कौल है वो कहते हैं जवाब शर्त है, जवाब शर्त यानी अकरम तो। ठीक हो गई बात। अब ये जो कौल अक्सरीन है इनके ऊपर मेरे अजीजों तकरीबन 3 इश्काल वारिद हैं इन पर। अक्सरीन के कौल पर जो कहते हैं इज़ा का आमिल और नासिब जवाब शर्त है यानी अकरम तो का है, जो जवाब है वो आमिल है इज़ा का और वो नासिब है, इस कौल पर 3 इश्काल वारिद हैं, 3 इश्काल वारिद हैं। पहला इश्काल ये है अजीजों, शर्त और जजा 2 जुमले होती हैं, शर्त और जजा 2 जुमले होते हैं और इन 2 जुमलों को मिलाने वाला यही हर्फ शर्त है। अदात शर्त होता है, अदात शर्त है जो शर्त और जजा को मिलाता है। वैसे हकीकत में शर्त एक जुमला होता है, जजा दूसरा जुमला होता है, इन दोनों जुमलों को मिलाने वाला अदात शर्त होता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई कि शर्त और जजा 2 जुमले होते हैं, दोनों को मिलाने वाला अदात शर्त होता है। ठीक है, लेकिन अक्सरीन के कौल की बिना पर अगर हम इनकी बात माने कि इज़ा का आमिल जवाब है तो फिर वो 2 जुमले एक जुमला हो जाएगा। क्या कहना चाह रहा हूं, पहला इश्काल किया है, शर्त और जजा 2 जुमले होती हैं, लेकिन अक्सरीन के कौल की बिना पर जो कहते हैं इज़ा का आमिल जवाब है, नतीजा ये निकलेगा कि ये 2 जुमले एक जुमला हो जाएगा, 2 जुमले नहीं रहेंगे, फिर ये एक जुमला हो जाएगा। ये पहला इश्काल है। क्यों एक जुमला हो जाएगा? क्योंकि ज़र्फ क्या है, ज़र्फ जो है वो हो जाएगा जवाब का जुज़, ज़र्फ बन जाएगा जवाब का जुज़, और वो जो मामूल है इज़ा वो अपने आमिल के जुमला में दाखिल होता है, मामूल अपने आमिल के जुमला में दाखिल होता है। और इज़ा बन जाना है किसका? जुज़। इज़ा बन जाएगा किसका? जुज़। अकरमतों का जो जवाब है उसका, क्योंकि ज़र्फ बनेगा ना तो उसका साथ मरबूत हो जाएगा, उसका जुज़ बन जाएगा। और इज़ा अपने बाद वाले जो उसके बाद है, इज़ा की जो बाद है ये तनी, वो उसके साथ आकर अकरमतों के मुतल्लिक हो जाएगा और फिर जुमला एक हो जाएगा। क्या कह रहा हूं? और शर्त और जजा 2 जुमले होती हैं, उनको अदात शर्त मिलाने वाला होता है। अगर हम अक्सरीन के कौल को ले लें, अक्सरीन जो कह रहे हैं कि इज़ा का नासिब जवाब है, तो नतीजे में मुस्तशकिल ये कह रहा है आगा जान ये 2 जुमले फिर ना कहना, ये 2 जुमले एक जुमला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो ज़र्फ है इज़ा वो किसके मुतल्लिक हो जाएगा? अकरमतों के जब मुतल्लिक हो गया, ठीक है, जवाब के मुतल्लिक हो गया ज़र्फ, मामूल दाखिल होता है, मामूल दाखिल होता है आमिल के जुमला में, जब वो इसमें आ गया तो फिर वो एक हो जाएगा। ये पहला इश्काल है। दूसरा इश्काल ये है, इज़ा जिअतनी अल यौम अकरमतुका गदन। ठीक है, फरमाती आगा जान तवज्जो फरमा रहे, इज़ा जिअतनी अल यौम अकरमतुका गदन वाली मिसाल में अगर अक्सरीन के कौल को ले लें, अक्सरीन के कौल पे तवज्जो है ना, जो क्या कहते हैं इज़ा का आमिल कौन है? अकरम, तो जो जवाब है वो आमिल है, वो नासिब है। अगर इनकी बात ले लें तो नतीजा ये निकलेगा कि ये अकराम तो 2 ज़र्फ़े मुतज़ाद में अमल कर रहा है। अकराम तो जो जवाब है ये 2 ज़र्फ़े मुतज़ाद में अमल कर रहा है और ये बातिल है, अकलन भी बातिल है और कसदन भी बातिल है। दूसरा इश्काल क्या है? इज़ा जिअतनी अल यौम अकरमतुका गदन में कि जनाब ये है कि इनके कौल की बिना पर, अक्सरीन के कौल की बिना पर ये अकरमतुका जो जवाब है ये 2 ज़र्फ़े मुतज़ाद में इसका अमल करना लाजिम आता है। एक का अकरमतुका का 2 ज़र्फ़े मुतज़ाद में अमल करना लाजिम आ रहा है और ये बातिल है, अकलन भी बातिल है और कसदन भी बातिल है।
अकलन क्यों बातिल है? इसलिए कि हदस वाहिद जो अकरमतु का है, एहतिराम है, ठीक है, ये एक हदस जो एहतिराम है, ये जनाब अली मुकम्मल का मुकम्मल एहतराम, मुकम्मल एहतराम ये दो जमानों में वाक़ई नहीं हो सकता है। इज़ा जितनी, इज़ा का ज़माना क्या है? इज़ा जितनी अल-यौम, इज़ा का ज़माना, ठीक है, और अकरमतु का ज़माना गदन है, ठीक है। लिहाजा हदस वाहिद जो एहतराम है, ये तमाम ही मुकम्मल तौर पर एहतराम, आधा एहतराम तो नहीं होगा, आधा आज कर लें आधा कल कर लें, मुकम्मल एहतराम ये दो जमानों में वाक़ई नहीं हो सकता है। और कसदन भी बातिल है, क्योंकि वुक़ूए इकराम जो है मुराद उसकी कल है, कल उसके एहतराम करने का इरादा है, ना आज। कसदन भी बातिल है इसलिए कि उसके एहतराम करने का इरादा कल है, ना आज। बस दूसरा इश्काल क्या हुआ? दूसरा इश्काल ये हुआ कि अक्सरीन के कौल की बिना पर जो है वो एक आमिल जो अकरमतु का है, वो दो ज़र्फ़ मुतज़ाद में अमल करता हुआ नजर आ रहा है, और ये एक फेल का दो ज़र्फ़ मुतज़ाद में अमल करना, इनके कौल की बिना पर दो ज़र्फ़ में इसका अमल करना, क्योंकि अकरमतु का अगर वो आमिल इज़ा का, ठीक है, गदन का भी है, गदन और इज़ जो अल-यौम के साथ मरबूत है, तो आज और कल में तजाद है या नहीं? गदन का जो ज़र्फ है, आमिल कौन है? अकरमतु। इज़ा का भी आमिल अकरमतु, इज़ा का ज़माना अल-यौम, उधर गदन, आज और कल, एक फेल दो ज़र्फ़ मुतज़ाद में अमल करता हुआ अगर नजर आए तो ये गलत है। एक फेल दो ज़र्फ़ मुतज़ाद में अमल नहीं करता, और ये बातिल है अकलन भी और क्या वजह कसदन भी, ये बात बातिल है। ठीक हो गई बात आजान। मैं तीसरा इश्काल बयान कर ले तो इन कोल्त है दरमियान में, लेकिन मैं आपको इकट्ठे तीसरा इश्काल भी बयान कर देता हूं ताकि इकट्ठे हो जाएं। दरमियान में इबादत है लेकिन इश्काल तीसरा ठहर के बाद में है। सुनना, तीसरा इश्काल किया किस पर? इस अक्सरीन के कौल पर तीसरा इश्काल ये है, तवज्जो, जवाब इज़ाए फुजाइया के साथ मिला हुआ होता है या जवाब हरफे नासिक के साथ मिला होता है। जवाब जो है वो इज़ाए फुजाइया के साथ मिला हुआ होता है या हरफे नासिक के साथ जवाब जो है वो क्या होता है? मिला हुआ होता है। जब ऐसा हो, जब जवाब मिला हुआ हो इज़ाए फुजाइया से या हरफे नासिक के साथ मिला हुआ हो, तो ऐसी सूरत में जवाब का इज़ाए फुजाइया से पहले और हरफे नासिक से पहले अमल करना ये ठीक नहीं है। इज़ाए फुजाइया के बाद वाला और हरफे नासिक के बाद वाला मा कबल में अमल नहीं करता, क्योंकि ये सदारत तलब है और इनका मा बाद मा कबल में अमल नहीं करता है। क्या कह रहा हूं? और जान अक्सरीन जो कहते हैं जवाब आमिल है इज़ा का, सुनना अर्ज कर रहा हूं बंदे हकीर फकीर सरापा तकसीर के जवाब इज़ाए फुजाइया के साथ मिला हुआ होता है कभी, और कभी हरफ नासिक जवाब के साथ मिला हुआ होता है। ठीक है, और जब ऐसा हो तो इज़ाए फुजाइया के बाद वाला हरफ नासिक के बाद वाला इनके माकबल में अमल नहीं कर सकता है। ठीक है, क्योंकि ये सदारत चाहते हैं, इनका माँ बाद माँ कबल में अमल नहीं करता है। और कभी कभी जवाब है, जवाब आया है और उस जवाब में जो अमल करने की सलाहियत रखती है वो सिफत है। कभी जवाब आया है और उसमें जो अमल करने की सलाहियत है वो सिफत की है, और आप जानते हो सिफत मौसूफ से पहले अमल नहीं कर सकती है। कितने इश्काल हो गए आजान? तीन इश्काल आपकी खिदमत में मैंने बयान कर दिए हैं। तवज्जो फरमाइए,
بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی اللہ حسبی اللہ مسئلۃ فی ناصب اذا الشرطیۃ مذہبان اذا شرطیہ کے ناصب میں دو نظریے مذہب ہیں دو نظریے اذا جئتنی اکرمتک مثال رکھو احدہما ان میں سے ایک انہ شرطھا اذا کامل شرط ہے جئتنی ہے وہو قول المحققین اور وہ محققین کا قول ہے فتکون بمنزلۃ متى وحیثما وایانا فتکون یہ اذا بمنزلہ یہ متا اور حیثما اور ایانا کی ہے یعنی کیا جس طرح متا میں عمل جو کرتا ہے وہ شرط کرتی ہے متا تجلس اجلس متا کامل شرط ہوتی ہے حیثما کا شرط ہوتی ہے ایانا کا شرط ہوتی ہے اسی طرح اذا کامل بھی شرط ہے. اچھا وقول ابی البکا غیر واردن قول ابی البکا مبتدا غیر واردن یہ خبر ہے. قول ابی البکا کیا ہے انہ مردود کہ قول محققین مردود ہے رد شدہ ہے بان المضاف الیہ لا یعمل فی المضاف مضاف الیہ مضاف میں عمل نہیں کرتا ہے. یہ کہنا یہ چاہتے ہیں آگاہ کہ اذا کیونکہ مضاف ہو رہا ہے جئتنی کی طرف تو مضاف الیہ مضاف میں عمل نہیں کرتا ہے. غیر واردن یہ قول ابی البکا کا اشکال وارد نہیں ہے. کیوں وارد نہیں ہے قول ابی البکا لأن اذا عند ہؤلاء غیر مضافۃ اس لیے کہ اذا عند ہؤلاء ان کی نظر میں غیر مضافۃ مضاف نہیں ہو رہا ہے اس لیے اذا ان کی نظر میں غیر مضافۃ مضاف نہیں ہے. کما یقولہ الجمیع اذا جزمت جیسا کہ یقولہ اس عدم مضاف ہونے کو مضاف نہ ہونا تمام کہتے ہیں کہ مضاف نہیں ہو رہا یقولہ اے مضاف نہ ہونے کو یقولہ الجمیع تمام کہتے ہیں کہ یہ مضاف نہیں ہو رہا اذا جزمت جب وہ کیا دیتا ہے جزمت جب وہ جزم دیتا ہے جب وہ اذا جزمت جب یہ اذا جزم دیتا ہے تو اس وقت مضاف نہیں ہو رہا ہوتا ہے. والثانی انہ ما فی جواب من فعل او شبہ دوسرا یہ ہے اور دوسرا نظریہ دوسرا مذہب انہ ما فی جواب اذا کامل کون ہے ما فی جواب جو اذا کا جواب فعل ہے یہ شبہ فعل ہے وہ قول الاکثرین اور وہ اکثرین کا قول ہے. ویرد علیہم امور علیہم اس قول اکثرین پر امور وارد ہیں یعنی اشکال وارد ہیں. ٹھیک ہے احدھا ان میں سے ایک کیا ہے ایک اشکال ایک امور ان شرط والجزاء عبارت ان جملتین شرط اور جزاء عبارت ہے دو جملوں سے تربط بینہما الادات بینہما اس دو جملوں کو ربط دیتا ہے ادات شرط وعلی قولہم کن کے قول اکثرین کے قول کی بنا پر تصیر الجملتان واحدہ دو جملے ایک جملہ ہو جائے گا یہ اشکال ہے. کیوں ایک ہو جائے گا لأن الظرف عندهم من جملۃ الجواب ظرف جو عندهم اکثرین کی نظر میں ہے وہ جملہ جواب میں سے ہوتا ہے نا ظرف جواب کا جز ہے. والمعمول داخل فی جملۃ عاملی اور معمول داخل ہے فی جملۃ عاملی عامل کے جملہ میں وہ کیا ہے داخل ہے. پس اذا اپنے جو اذا کا ساتھی ہے جئتنی اس کے ساتھ اکرمتک کے متعلق ہو جائے گا اور وہ اس کا جز بن جائے گا ایک جملہ ہو جائے گا. الثانی دوسرا امر دوسرا امور میں سے انہ یلزمہم فی نحو یعنی دوسرا اشکال ہے انہ یلزمہم فی نحو اذا جئتنی اليوم اکرمتک غدا ان یعمل اکرمتک فی ظرفین متضادین اکثرین کے قول کی بنا پر لازم آتا ہے ان یعمل اکرمتک دو ظرف متضاد میں عمل کرے یہ لازم آتا ہے. وذالک اور ایک ظرف کا ایک فعل اکرمتک کا دو ظرف میں متضاد میں عمل کرنا باطل ہے عقلاً آگے آئے گا قصداً عقلاً کیوں اذ الحدث الواحد المعین لا یقع بتمام فی زمانین اس لیے کہ حدث واحد جو اکرام احترام ہے معین لا یقع بتمام ہی یعنی مکمل اول تا آخر مکمل احترام فی زمانین دو زمانوں میں واقع نہیں ہوتا ہے. ایسا تو نہیں آدھا احترام آج ہو آدھا احترام کال لو یہ تو نہیں ہوتا نا مکمل احترام دو زمانوں میں واقع نہیں ہو سکتا ہے. اور قصدن بھی باطل ہے کیوں اذ المراد وقوع الاکرام فی الغد کیونکہ مراد یہ ہے کہ احترام واقع ہو کل لا فی اليوم نہ آج واقع ہو اس کا قصد یہ ہے کہ کل احترام ہو نہ کہ آج. ٹھیک ہے ابھی میں نے بتایا تھا نا
इन कुल्त है दरमियान में। फिर तीसरा इश्काल है, मैं तरतीब से चला हूं तो बेहतर नहीं, आपकी राय के मुताबिक क्या है? सालिसो तीसरा इश्काल बाद में, दरमियान में इन कुल्त है, मैं वो पढ़ लेता हूं। तवज्जो, फ़इन कुल्त, ठीक है, अगर आप कहें कि आगा जान ये जो पहला कौल है मुहक्किकीन का, इज़ा जिअतनी अकरमतुका, उस कौल की बिना पर इज़ा जिअतनी अल-यौम अकरमतुका गदन, इस मिसाल में इज़ा जिअतनी अल-यौम अकरमतुका गदन, इसमें पहले कौल की बिना पर, पहले कौल की जो मुहक्किकीन का है उसकी बिना पर यौम का आमिल कौन है? क्योंकि जिअतनी तो आमिल है इज़ा का, जिअतनी नासिब है और आमिल है इज़ा का, तो यौम का कौन है? यौम का कौन है? पहले कौल की बिना पर इन कुल्त वाला कह रहा है यौम का नासिब कौन है? पहले मुहक्किकीन के कौल की बिना पर किया एक आमिल दो ज़र्फ में अमल करता है। सवाल, किया एक फेल पहले कौल की बिना पर, यह तनी क्योंकि इज़ा का भी आमिल है यौम का भी हो, तो क्या एक फेल दो ज़र्फों में अमल करता है? सवाल, जवाब ये है कि जी करता है। अगर एक आम हो दूसरा खास हो, दो ज़र्फ हैं, एक आम है दूसरा खास है, तो एक आमिल दो ज़र्फों में अमल कर सकता है जब उनमें तज़ाद ना हो। तवज्जो कर रहे हो, एक आमिल दो ज़र्फों में अमल नहीं करता जब दोनों में तज़ाद हो, ज़िद्दियत हो, एक ज़र्फ आज और दूसरा कल हो, जैसे यौम और गद था। लेकिन एक आमिल दो ज़र्फों में जो मुतज़ाद नहीं है, एक आम है और दूसरा खास है, उनमें अमल कर सकता है। ठीक हो गई बात अजीजो? तवज्जो फरमाओ। फ़इन कुल्ता, अगर आप कहें फमन नासिब अल यौम अलल कौल अव्वल, यौम का क्या नासिब है? पहले कौल की बिना पर, मुहक्किकीन के कौल की बिना पर। कौन सी मिसाल इसी को मद्देनजर रखना? इज़ा जिअतनी अल यौम अकरमतुका गदन, जिअतनी पहले कौल की बिना पर आमिल इज़ा का तो कहते हैं यौम का, फिर आमिल कौन है? सवाल करने वाला। फमन नासिब अल यौम, यौम का नासिब क्या है? अलल कौल अव्वल, पहले कौल जो मुहक्किकीन का है। व कैफ़ यअमलुल आमिलुल वाहिद फी ज़र्फ़ ज़मानैन, किस तरह एक आमिल दो ज़र्फ़ ज़मान में अमल करता है? कुल नाम कहेंगे लम यतज़ादा कमा फिल वजह साबिक, लम यतज़ादा, ये इनमें तज़ाद नहीं है जैसे पहली वजह में था। पहली वजह में ठीक है, इज़ा जिअतनी अल यौम अकरमतुका गदन, अकरम तो जब अमल बन रहा था तो पीछे का ज़माना यौम और आगे गदन, दो ज़र्फ थे, दोनों का ज़माना अलग अलग था। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, कुलना लम यतज़ादा, ये तज़ाद नहीं है इनमें दो ज़र्फों में, जैसे पहली वजह में था व अमलुल आमिल फी ज़र्फ़ ज़मान यजूज़ु, और आमिल का दो ज़र्फ़ ज़मान में अमल करना जायज़ है। इज़ा काना अहदुहुमा अम्म मिन अल आखिर, जब उनमें से एक आम हो दूसरे से। नहव आती का यौमुल जुमाते सेहरा, आती का यौमुल जुमाते सेहरा, वलैसा बदलन, वलैसा बदलन। तवज्जो करो, यहाँ क्या है? आती का यौमुल जुमाते सेहरा, यौमुल जुमा आम है, सेहरा क्या है? आती का यौमुल जुमाते सेहरो, ठीक है, यौमुल जुमा ये भी ज़र्फ है, सेहरो ये भी ज़र्फ है। तो एक आम है यौमुल जुमा, शेर क्या है? खास है। आती का इनमें अमल कर रहा है क्योंकि दो ज़र्फ हो, एक आम हो एक खास हो, तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, कोई कहे कि ये जो है बदल है, यौम का ये शेर बदल है, तो कहना चाहते हैं नहीं, ये बदल, ये उसका बदल नहीं है। बदल क्यों? अगर हमने बदल बना लिया ना तो बदल का आमिल जो है ना वो और होता है, बदल का आमिल और होता है। अगर हमने कहा शेर बदल है यौम का, फिर शेर का कोई आमिल अलग मानना पड़ेगा, इसलिए नहीं, एक आम है ये खास है, ये उसका बदल नहीं है। वलैसा बदलन, शेर बदल नहीं है यौम का। ले जवाज़े सीरा ले यौमुल जुमा सेहरा, क्योंकि ये जायज़ है। बिरफ़्इल अव्वल यौमुल जुमा व नस्ब सानी सेहरा, ये जायज़ है। जबकि अगर बदल होता तो ये हम नहीं कर सकते थे कि एक को रफ़ा दूसरे को नस्ब दें। बदल मुबदल का इराब एक होता है, जबकि ये ठीक है बिरफ़्इल अव्वल व नस्ब सानी, ये बदल
नहीं है। नस अलैहि सीबवे ने इस पर नस पैदा की है। वान शदल फरजदक, और फरजदक ने ये शेर पढ़ा है। ये शेर पे जरा तवज्जो देना। मता तरिदन यौमन सिफार तजद बिहा उदयम यरमी अल मुस्तजीज अल मुअव्वरा। यहां भी हम वही बात करेंगे कि मता जो ज़र्फ है और यौम जो ज़र्फ है, ठीक है, तरेदना, ठीक है, जो है किस में अमल कर रहा है? मता में भी कर रहा है, यौम में भी कर रहा है। मता और यौम दोनों का आमिल तरेदना है, तो एक फेल दो ज़र्फ में अमल कर रहा है। और यहां मसला नहीं है, क्योंकि भला यौम आम है, मता खास है। मता खास है, यौम आम है। अगर एक ज़र्फ आम हो दूसरा खास हो तो हम कह चुके हैं एक फेल दो ज़र्फों में अमल कर सकता है जब एक ज़र्फ आम हो दूसरा खास हो। मता खास है, यौम आम है। तरेदना मता का भी है, यौम का भी है। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब यहां अगली बात, अगर आप कहें कि जी नहीं, यौम को ना क्या बनाते हैं? बदल बनाते हैं। मता का यौम को बदल बनाते हैं, तो ये ठीक नहीं है। आप बदल वाली बात नहीं कर सकते यहां। क्यों? क्योंकि बदल की शर्त ये है, ठीक है, कि हर्फ शर्त जो है उसके साथ क्या हुआ जान? बदल की शर्त ये है कि जो इसमें शर्त है उसमें हर्फ शर्त मिला हुआ हो, इसमें शर्त के साथ हर्फ शर्त मिला हुआ हो। बदल होने की शर्त ये है कि इसमें शर्त के साथ हर्फ शर्त मिला हुआ हो। ये बदल भी आप उसको नहीं बना सकते। फयौमन यमतनु यकून बदलन मिन मता, यौम मुमतन है कि वो बदलो मता का। क्यों? लिअदम इक्तिरा नहीं भी हर्फ शर्त है। लिअदम इक्तिरा नहीं क्योंकि ये मिला हुआ नहीं है हर्फ शर्त के साथ। ठीक है, लिअदम इक्तिरा नहीं भी हर्फ शर्त का क्या मतलब है? शर्त बदल होने की है कि इसमें शर्त के साथ हर्फ शर्त मिला हुआ हो और यहां नहीं है लिअदम इक्तिरा नहीं भी हर्फ शर्त। व लिहाजा यमतने फिल यौम फिल मिसाल अन यकून बदलन मिन इज़ा। लिहाजा मुमतने हो पिछली मिसाल में, यौम जो है उस मिसाल इज़ाजी तनी अल यौम वाली मिसाल में, ठीक है, मुमतने है कि यौम बदलो, इज़ा का बदल नहीं बन सकता है। इसी बिना पर वह यमतन में यकून ज़र्फ़न ले तजिद, और यह भी मुमतन है कि यौम ज़र्फ़ हो तजिद का। ठीक है, मता ज़र्फ़ हो तरेदना का, यौम ज़र्फ़ हो आगे वाला जो तजिद है उसका हर एक का अलग अलग हो जाए। यौम का आमिल क्या बन जाए? तजिद बन जाए, और मता का तरेदना हो जाए। यह भी ठीक नहीं है। वह यमतन यकून यौमन ज़र्फ़न ले तजिद, मुमतन है कि यौम ज़र्फ़ हो तजिद का। क्यों? ले अन्ना ला यनफसिलु तारिदु मिन मामूलिही व हुवा सिफार बिल अजनबी, ताकि तारिद का फासला ना हो। मिन मामूलिही, तारिद का अपने मामूल से फासला ना हो। अब भाई वो जो तरेदना है ना उसका अपने मामूल से फासला ना हो, और वो क्या? वह हुवा सिफार, वो मामूल कौन है? सिफार है बिल अजनबी, अजनबी का फासला ना हो। अजनबी कौन बनेगा? यौमन, इसलिए ठीक नहीं है। दोबारा सुनो, वह यमतने अन यकूना ज़र्फ़न ले तजिद, और मुमतने कि ये यौम ज़र्फ़ हो तजिद का, ये नहीं हो सकता यौम ज़र्फ़ तजिद का बना दो। ले अन ला यनफसिल तारिद मिन मामूल, ताकि तारिद का अपने मामूल से फासला लाजिम ना आए। और मामूल कौन है? वह सिफार। ठीक है, अजनबी का फासला न लाए। अजनबी से मुराद वो यौम लेना है। तारिद का जब मामूल सिफार हो गया तो उसमें यौम अजनबी है, यौम हो जाएगा अजनबी, उसका फासला आ रहा है। फतयन वन्नहु ज़र्फ़ सानिन लितरिद, पस मुय्यन है कि ये दूसरा ज़र्फ है तरिद का, तरिद का ये दूसरा ज़र्फ है। ये इन कुल्त जो थी तमाम हो गया जान। अस्सालिसो, तीसरा इश्काल किस पे? अक्सरीन के कौल पे, जो कहते थे इज़ा कामिल जवाब शर्त है। अक्सरीन ये कहते थे ना इज़ा कामिल शर्त नहीं है, जवाब शर्त है। उन पर तीसरा इश्काल अस्सालिसु अन्नल जवाब वरद मकरूनन बिइज़ल फुजाइया,
जवाब वारिद होता है, मकरून होता है इज़ा फुजाइया से ना हो। सुम्मा इज़ा दाकुम दावतन मिनल अर्ज़ इज़ा अंतुम तखरुजून, यहाँ जवाब किससे आया है? इज़ा के साथ मिला हुआ इज़ा अंतुम तखरुजून, इज़ा फुजाइया है जब तुमको दावत दी जाएगी एक मरतबा ज़मीन से निकलने की। इज़ा अंतुम तखरुजून, तो तुम अचानक निकल पड़ोगे। इज़ा अंतुम तखरुजून ये जवाब है, इज़ा फुजाइया के साथ मिला हुआ है। व बिल हर्फ नासिख, और जवाब मिला हुआ होता है हर्फ नासिख के साथ भी ना हो। इज़ा जितनी अल-यौम फ़इन्नी उकरिमुका, इन्नी इन्नी ये जो है हर्फ नासिख से मिला हुआ है। व कुल्लु मिनहुमा ला यअमलु मा बादहु फीमा क़ब्लहु, कुल्लु मिन इनमें हर एक में, कुल्लु मिनहुमा दोनों, मिनहुमा दोनों में हर एक में, दोनों कौन? इज़ा फुजाइया और हर्फ नासिख में हर एक जो है ला यअमलु मा बादहु, इनका मा बाद फीमा क़ब्लहु मा कबल में अमल नहीं करता। इन दोनों में से हर एक का मा बाद मा कबल में अमल नहीं करता है। क्या मतलब अगर जान, यानी इज़ा का मा बाद जो तखरुजून है, ठीक है, इसको अगर आप आमिल बनाना चाहते हैं, ठीक है, इसको अगर आप आमिल बनाना चाहते हैं तो ये अमल नहीं करेगा। इज़ा का मा बाद मा कबल में अमल नहीं करता है। इसी तरह हर्फ नासिख के बाद वाला मा कबल में अमल नहीं करता। व वारद ऐज़न, और जवाब ये भी वारिद हुआ है, वारद ऐज़न जवाब वारिद हुआ है। वस्सालिउ फीहि लिल अमल सिफ़तुन, दर हालांकि सलाहियत रखती है जवाब में अमल करने की सिफत, दर हालांकि जवाब में अमल के लिए सिफत सलाहियत रखती है। का कौल, जैसे ये कौल फ़इज़ा नुक़िरा फ़िन नक़ूर फ़ज़ालिका यौमइज़िन यौमुन असीर, ठीक है। अच्छा माना फिर करता हूं, इसमें क्या है? यौम मौसूफ है, असीर सिफत है, और यहां इज़ा में अमल करने की जो सलाहियत रखती है, ठीक है, वो कौन है? सिफत है, असीर है, और यौम मौसूफ पहले है। सिफत मौसूफ से पहले अमल नहीं कर सकती। वला तअमलु सिफतु फी मा कबल अल मौसूफ, सिफत मा कबल मौसूफ, मौसूफ से पहले अमल नहीं करती है। माना क्या है? फ़इज़ा नुक़िरा फ़िन नक़ूर, फिर जब फूंक मारी जाएगी सूर में, फिर जब फूंक मारी जाएगी सूर में तो यही दिन होगा बड़ी मुसीबत का दिन। मुवफ़्फ़क़ मुय्यद रहो, सलामत रहो मेरे अज़ीज़ों। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।